Hi, guys, welcome to another episode of What's Your Kryptonite. In today's conversation, we meet someone who goes beyond titles and designation, and we meet Irfan Ahmed, a person who blends values, choices, and the pursuit of balance. From his early influences to the choices he's made to the legacy he hopes to leave behind. This is going to be a conversation about a life lived with purpose. Assalamu alaikum, Irfan. Walaikum कैसे आप? salam. Thank you very much for inviting me. Thank you so much for agreeing. Honestly, I think I'm very grateful. My कि आप- pleasure. My pleasure. Asha, I think we'll go into the conversation organically. लेकिन if I were just to start, जैसे कहते हैं ना childhood, early influences, whatever altered or changed एक जो व्यू पॉइंट होता है दुनिया का या देखने का एक नज़रिया होता है दुनिया का, वो आपके लिए कैसा था? ऑफिस वो सब बाद में चलेंगे उसमें. हाँ देखें obviously for everyone and the things start with your family, right? So for me, my father always had profound influence on myself. वही मेरे role model थे. He was my mentor and he still remains my mentor. While he passed away in 2011, but not a single day goes कि मैं उनको याद नहीं करता. Whatever मैं दुनिया में हर एक को ये कहता हूँ, whatever good things are in me जी. is because of his guidance. Whatever bad things are in me is because of myself. So I love the honesty. yeah, I mean we all have weaknesses. So Yes. so मुझे from the beginning I was very fortunate enough to have such a father. जी. He was one of the leading scientists of this country. Wow. And he was heading SUPARCO, which is a space research organization of the country, and Pakistan's first satellite, first rockets. He was involved in all those projects. In fact, when Pakistan's first satellite went into space, जी. Badr 1, he was the head of the organization. And he felt very proud of it because not only Pakistan, जी. it was Muslim world's first satellite. Wow. So I had the opportunity to be very close to him, जी. learn from him on daily basis. So childhood influence जो है ना सबसे ज़्यादा मुझ पर मेरे father का रहा है. And not only he was a role model as a scientist, but I think he was a role model as a father, as a friend, as a colleague. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा. I mean everybody who interacted with him throughout his life said the same thing. So मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली. So ये मेरा फर्स्ट इन्फ्लुएंस वर्ल्ड व्यू या आप जो भी कुछ कह लें सब उन्हीं की तरफ से आया. So for example, he always used to say to me कि forgive and forget. अब मैं ये बात कहता था उनसे कि फॉरगिव करना तो आसान है, चलो कर देंगे, फॉरगेट कैसे करूं? सही बात हाउ इज इट पॉसिबल? एंड देन ही यूज्ड टू से कि इफ यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट जी. देन यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव आल्सो, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ वापस आएगी आपकी तरफ. सो हैव द करेज एंड ट्राई टू फॉरगेट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रियली एक्चुअली फॉरगिव पीपल. और उन्होंने ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करी थ्रू आउट हिज लाइफ. आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट with each and everyone. I'm guilty also. आप अकेले नहीं हैं इसमें. I'm also guilty. I try to do that, but मैं successful कुछ जगहों पर इतना नहीं हो सका. But that is how ये मेरा childhood था. तो ये मुझे values मिली from the beginning. और जाहिर है कि since he was a scientist तो उनके views जो थे वो बड़े positive थे, logical थे, backward नहीं थे. तो ये मेरी ज़िंदगी की beginning जो है वो बस उन्हीं के साथ है. So you know, आप कह रहे हैं your father was a scientist and the first satellite. Like there are not many children, not many people who can say my father was a scientist and he led so many fantastic initiatives. और इस तरह का फिर एक unique perspective आता है. Did you ever want to go in that limelight? And I know हमारी जब discussion हो रही थी ये बातचीत नहीं आई थी, but now that you're talking about it, I can't help but ask. मुश्किल था. 2-3 reasons थे. One was I knew I'm not as good as him. Number one. Number two, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना he served Pakistan, जी. right?
So he was not interested in money. He was only interested in serving Pakistan. तो उन्होंने ये नहीं है कि हमारे घर में कोई कमी थी, आई मीन वी हैड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, बट उन्होंने पैसा कमाने पे तवज्जो नहीं दी. जी. सो आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ही रिटायर्ड इन 1990. जी. And in 2002, he was visiting one of my sister who lives in USA. जी. So जब वो USA के वीज़े के लिए गए और उनको वीज़ा मिला, तो ड्यूरिंग दोज डेज कराची में नहीं मिलता था, इस्लामाबाद जाना पड़ता था. सो ही कॉल्ड हिज ऑर्गेनाइजेशन सुपार्को, और वहाँ पे ही ट्रेन पीपल सो मच कि जो असिस्टेंट उनका था एज चेयरमैन सुपार्को, जी. every other chairman continued with that person. He was so trained. So after him, at that moment of time, चौथे साहब थे जो चेयरमैन बने हुए थे, 2002 की बात. जी. And then the chairman himself called him, and that chairman was retired journal. And he called him and said कि आप जो है ना जब इस्लामाबाद जाएं तो आप हमारे ही गेस्ट हाउस में रहेंगे और आपको वही प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि जो आपको एज सर्विंग चेयरमैन दिया जाता था. ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप हमारे लोगों को ना एक लेक्चर वहाँ दे दीजिएगा. आप ही के पुराने लोग भी हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ नए लोग आए हैं. तो ही सेड आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. वो गए. फिर जब वो वापस आए, वीज़ा मिला, तो उन्होंने कहा अब आपका प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पे कराची के भी वैसे ही होगा एज इट यूज टू बी व्हेन यू यूज टू ट्रैवल, बिकॉज वो हर साल UN जाते थे, 2 मीटिंग्स होती थी, तो आप ऐसे ही जाएंगे न्यूयॉर्क. खैर, अब उन्होंने अपने ऑफिस के 2 लोग उनको आगे लेने के लिए, उनको और मेरी मदर को, जी. जब लेकर गए, सो ही यूज टू ऑलवेज से कि यार लोगों का ख्याल करो. तो उन्होंने उससे पूछा, जो दूसरा था, कि आप कहाँ रहते हो. जी. तो उसने अपना घर बताया. तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि वापसी में लेट हो जाएगा, मेरी फ़्लाइट लेट है, सो लेट द ड्राइवर गो डायरेक्टली टू हिज होम, और आप जो मेरा सामान क्लियर कराओगे आपको मेरा बेटा छोड़ देगा, क्योंकि मेरा बेटा भी आ रहा है वहाँ पे मुझे ड्रॉप करने. तो मैंने कहा पापा व्हाट इज़ दिस, ये तो आपके ऑफिस से आपको ऑनर मिला था, इसमें भी आपने मुझसे काम ले लिया. एंड देन व्हेन ही वेंट एंड वी वर पार्किंग में, हम वापस आए एयरपोर्ट की, तो मुझे आपके सवाल का अब मैं जवाब दे रहा हूँ इतनी लंबी स्टोरी के बाद, कि उन साहब ने कहा व्हाई डिड यू नॉट जॉइन सुपार्को लाइक योर फादर. यस. तो मैंने कहा कि ये जो गाड़ी आप मेरी देख रहे हैं, जी. ये मुझे कंपनी ने दी है. जी. एंड माई फादर गॉट दिस कार when he was chairman, and I have got this car so early because I am working for a private company, for an MNC. जी. So I am making much more money than my father even now. So that's why I did not join Suparco. तो फिर उसने मुझे कहा कि देखिए, when we went there for the clearance of his bags, वहाँ पे कस्टम के लोगों ने कहा कि ये कौन से आपके चेयरमैन आ गए, अभी 3 दिन पहले तो आपके चेयरमैन गए अमेरिका, हाउ कम ही हैज़ कम बैक. Yes. तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो गए हैं 3 दिन पहले, ही इज़ करंट चेयरमैन, ये जो आए हैं ये फॉर्मर चेयरमैन है. उसने कहा कितने साल पहले ये रिटायर हुए थे. ही सेड 12 years बैक. कहता है स्टिल इनकी इज्जत है. मौजूदा चेयरमैन कौन है. उसने कहा जी एक रिटायर्ड जनरल है. तो कहना एक रिटायर्ड जनरल एक साइंटिस्ट की इज्जत कर रहा है. ये साहब जब आएंगे तो मुझे इनसे मिलाना ज़रूर. ही मस्ट बी वेरी, कस्टम्स के, ये उस आदमी ने मुझे बताया कि उन्होंने इज्जत कमाई. मैंने कहा ठीक है, उन्होंने इज्जत कमा ली, मुझे थोड़ा पैसा कमा लेने दो साइड, बिकॉज मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. आई लव द ऑनेस्टी इरफान भाई. आई मीन यस, मैंने कहा मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा, बट देन ही गेव मी एन एग्जाम्पल कि दैट इज हाउ द रिस्पेक्ट इज. ही इज रिटायर्ड 12 years बैक एंड स्टिल एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरे चाइल्डहुड में एक, अब आप सोच सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस इतना इन्फ्लुएंस है कि आज मैं अपनी बात से पहले उन्हीं की बात किए जा रहा हूँ. जी. सो दैट इज़ हाउ. यू नो, आप ये सारी बातें कर रहे हैं एंड आई कांट हेल्प बट आस्क कि आप जब खुद प्रोफेशनल एंड अगेन प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ होता है, 9 to 5 प्रॉफिट एंड लॉस, हर ऑर्गेनाइजेशन में दैट्स द ग्राइंड. फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे, बिकॉज वो दोज आर 2 worlds कोलाइडिंग ना एक तरह से. लाइक येस यू वांट टू अर्न मनी, लेकिन योर अर्ली इन्फ्लुएंसेस जो चाइल्डहुड के इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो आपके ऊपर बहुत पॉजिटिवली हावी भी होते हैं, बिकॉज आप हर चीज़ उसी पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हो. देखें, लेकिन आप इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन यू कैन स्टिल बी फेयर विद पीपल, यू कैन स्टिल बी वर्किंग ऑनेस्टली. जी.
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियसली दे एट द एंड ऑफ द डे दे आर बॉदर्ड अबाउट देयर प्रॉफिट, राइट? Exactly. बट वो प्रॉफिट ईमानदारी के साथ किया जाता है. लोग अगर ईमानदारी से काम करना चाहें, फेयरनेस से करना चाहें, जस्टिस के साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं. सो वो वैल्यूज़ तो कहीं भी अप्लाई हो सकती है ना. दीज आर यूनिवर्सल वैल्यूज़. वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है. दीज आर द यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्रिएटेड बाय द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. You can apply those anywhere. You know, I'd want to know कि again you're absolutely right. ठीक है, that's how you led your life in the corporate sector या private में 9 to 5 very authentically, very honestly, but you were doing the due diligence जो basically वो corporate sector demand करता है. But were there any points जो आपने कहा कि okay this is my point of recognition which is not through a certain designation, जो किसी टाइटल के ज़रिए नहीं मिला, जो किसी बहुत बड़े बोनस के ज़रिए नहीं मिला, but it is through certain actions जो मैंने उस corporate sector में रहकर ही सर्व किया है. हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है. You're CEO of yes Hertz and there are so many other organizations and we'll talk about that in detail and आगे जाके. हाँ. But were there many points? क्योंकि I'm sure ऐसे कुछ ना कुछ points तो होंगे. I mean, are you referring the challenges? Not Yeah, challenges, हाँ. जो points of recognition. Like एक होता है ना, अगर आप किसी से भी पूछो तो they go like मैं CEO हूँ, like हाँ. yourself, या मैं CFO था, या मैंने यहाँ से यहाँ. हाँ, समझ गया. Honestly speaking, CEO की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, let's be honest. मुझे अगर आप पूछें कि मैं अगर किसी चीज़ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई फील जो मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट है जी. वो उस वक्त है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर विद सीमेंस एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन अ सॉफ्टवेयर. मैं बिकॉज माय कैरियर स्टार्टेड विद आईटी. जी. आई एम बेसिकली अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी जी. एंड आई जॉइंड सीमेंस आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग. तो मैं वहाँ के आईटी डिपार्टमेंट में था और वो वक्त है कि जब कंप्यूटर्स के बारे में लोग सोचते थे कि ये क्या करेगा आगे. So I have seen all this, right? So I'm talking about 1991 at this moment. तो जब मैंने Siemens join करी and I got an opportunity to work on a software for project management. जी. अच्छा, वो software जो हम डिज़ाइन कर रहे थे वो डिज़ाइन हमारा एक बहुत ही एक senior German who was a project management का बाबा उसे कहते थे and he is one of my mentor when it comes to corporate life. He also passed away few years back. तो उसके साथ हम बैठ के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. तो मेरे साथ एक टीम थी यहाँ लोकल एंड when we developed that software, उस सॉफ्टवेयर को इतनी ज़्यादा इज्जत मिली कि Siemens Germany which was the head office of Siemens उसने उस सॉफ्टवेयर को Siemens पाकिस्तान से परचेज किया and they decided to implement this across the world. ठीक है. तो मेरे लिए किसी डेजिग्नेशन की कोई वैल्यू नहीं. मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो ये है कि आई वॉज द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देन आई वॉज एबल टू प्रेजेंट दिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इवन आई प्रेजेंटेड दैट सॉफ्टवेयर इन वन ऑफ द इनोवेशन कॉम्पिटिशन ऑफ सीमेंस जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में. वहाँ सारी दुनिया के लोग आए थे और हर मुल्क का वो एक इनोवेशन का वो एक बता रहे थे कि भाई किसने किस मुल्क ने क्या किया. तो हमारा प्रोजेक्ट ये था कि हमने पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको जर्मनी हेडक्वार्टर ने लेके पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किया. तो अगर आज मैं किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ तो नॉट एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विच आई बिकेम लेटर ऑन इन IT और रीजनल हेड इन मर्स्क और CEO ऑफ हर्ट्स. नो, मैं वो प्रोजेक्ट को आपसे सिर्फ डिस्कस करूँगा जो मैंने आपको बताया. मैं बता नहीं सकता कि कितनी महसूस होती है वो कि द रिस्पेक्ट आई गॉट और एक प्राउड फीलिंग आती है ना कि आपने काम किया. वहाँ भी चलो हमने पाकिस्तान के लिए तो नहीं किया लाइक माय फादर, लेकिन सीमेंस पाकिस्तान के लिए तो कर लिया ना. जी. सो यू फील हैप्पी कि यू डिड समथिंग और उसको जो है वो लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. आपकी नज़र में लीडरशिप के क्या कॉन्सेप्ट, वैल्यू, पोटेंशियल, एग्जीक्यूशन, जो भी बोलना चाहें? मेरी नज़र में लीडर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि he or she has to be a team member first. Which is very difficult. No, it is not difficult. It is
आपको देखें, फिर वही वाली बात है, हमारे तो जो हमारे मज़हब के अंदर भी कहा जाता है और हर मज़हब में कहा जाता है कि हम्बलनेस इज़ द की। यस। तो आप जब लीडर हैं तो लीडर तो आप बन गए, बट आपको अगर हम्बलनेस आपकी नहीं होगी तो आप टीम प्लेयर नहीं बन पाएंगे। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन आई बिकेम हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट जी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन सीमेंस, तो मुझसे पहले जो डिपार्टमेंटल हेड थे वो पता नहीं क्यों मैं उनको बहुत बुरा लगता था, ठीक है। अच्छा। और वो बुरा लगने की वजह उनकी ये थी कि आई वॉज द ओनली वन इन द डिपार्टमेंट जो ग्रेजुएट हुआ था एक एनईडी यूनिवर्सिटी से और उसकी एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन थी। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उस ज़माने में लोग ना इदारे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जो कंप्यूटर की डिग्रियां देते हों। सो ही वॉज परहैप्स अफ्रेड कि कहीं ये मेरी जगह ना ले जी। लें, एंड ही वॉज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, वो कहीं से ट्रांसफ़र होके आ गए थे। तो वो हर दफ़ा मुझे जो है ना, वो पता नहीं क्यों वो मुझे पीछे करते थे। जब भी कोई मीटिंग्स वगैरह होती थी मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं पेशेंस का मुजाहरा करता था। एक दो लोगों को तो डिपार्टमेंट के उन्होंने मेरे पीछे लगा दिया था कि देखते रहो ये कहाँ जाता है, किधर जाता है, क्या नहीं माइक्रो करता। मैनेजमेंट। Yes. बिल्कुल। But ultimately he went and I became the head of the department. अच्छा, when I became the head of the department, I was called by senior management of Siemens और उन्होंने कहा देखें जी ये 8 लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में, जी। आप बताएं, that is how ruthless the companies could be, आप बताएं इनमें से किसको निकालना है। Anybody you think who is not fit, just tell me now, today, जो मेरे सीनियर बॉस थे, एंड ही विल नॉट बी इन द टीम एंड देन यू कैन रिप्लेस दैट पर्सन। तो पहला जो इंसान की शैतानी चीज़ होती है ना, तो मेरे अंदर भी शैतान आया कि मैंने कहा जो 2 लोग मेरे पीछे लगे रहते थे ना, दिस इज़ द टाइम टू टेक रिवेंज। बट देन द वैल्यूज़ दैट आई हैड ऑलवेज बीन लिसनिंग एंड सीइंग माई फादर डूइंग, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आई डिसाइडेड नहीं। And then I said कि no, all of them are good. And then the head said कि अच्छा, if all of these are good, then why your department has not been able to produce the results which were expected of your department in the past? तो मैंने कहा there was a problem of leadership perhaps. तो कहता now we have a new leader in you, so do you think that you will be able to implement एक सॉफ्टवेयर था which has not been implemented for the last couple of years. Now you think you will be able to do that with this team? मैंने कहा yes. And if this does not happen now, then who is to be blamed? Because you are saying these are all capable people. मैंने कहा myself. And then I went to my team and said कि देखो ये मैंने बात करके आया हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि मुझे कहा गया था जिसको चाहो निकाल दो, घबरा जाते। मैंने कहा मैं बात करके आया हूँ, अब हमने एज ए टीम काम करना है, आई नीड योर सपोर्ट, आई विल हेल्प यू, यू हेल्प मी। और हमने ये जो ब्लैक स्पॉट है ना ऑन अस, दैट द आईटी डिपार्टमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट दिस सॉफ्टवेयर इन द होल फैक्ट्री, अब हमने इसको हटाना है। एंड बिलीव मी, एवरीबडी वर्क विद मी। लेट बैठना था, लेट बैठे, रात तक बैठना था, रात रात बैठे। And we had promised to the management that we will be able to fix all the bugs and errors in 6 months time, and we were able to do it alhamdulillah in 4 months. और उससे सिर्फ मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई, मेरी टीम की भी प्रोग्रेस हुई। तो क्यों नहीं लीडर जो है वो टीम का हिस्सा बन सकता? अगर मैं उनका साथ नहीं देता और वो मेरा साथ नहीं देते तो we would not have been able to achieve the results. No, you wouldn't. तो हमारी बदकिस्मती यह है कि लीडर एरोगेंट हो जाता है। Yes. और वो एरोगेंस उसको जो है ना फिर उसको भी डुबोती है और उसकी टीम को भी डुबोती है। और ये कुछ ज़्यादा ही रैम्पेंट है। अब क्या कर सकते हैं? You think there was ever a time that you had to take certain decisions that weren't necessarily the easiest? क्योंकि आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, these are not easy decisions. ये in the moment, like you said, शैतान आ गया and you want to get rid of those people, and ये human nature, it's not just you, it's anyone. या the way you were serving and you were the only one and जिस तरह diligence से you were working, ये वो सारे episodes हैं which you lived through. देखिए मुश्किल तो आती है ना, तो एक ये मुश्किल थी क्योंकि because I knew कि the moment I will say these all people are good, जी, and I will not let any one of them go, जी, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि next time it is going to be me. yes. So भाई आप रिस्क लेना, आप अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है तो रिस्क लें। सिमिलरली
आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल व्हेन आई जॉइंड द शिपिंग कंपनी, जी तो ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुई है जी तो सिस्टम्स ने रिप्लेस करना शुरू किया, जो ग्लोबल सिस्टम्स बनते थे। तो मुझे एक दिन वन फाइन मॉर्निंग, एंड आवर रीजनल ऑफिस वाज इन मुंबई, इंडिया, तो रीजनल हेड की तरफ से एक डिसीजन आया हमारी कंपनी में कि पाकिस्तान ऑफिस में हेड काउंट रिडक्शन करना है, बिकॉज इन एवरी ऑफिस हेड काउंट रिडक्शन करना है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मेरा था, देवर 25 पीपल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा जी 4 लोग तो आपके डिपार्टमेंट से कम होंगे, तो द हेड काउंट विल गो डाउन टू 21। राइट अब 4 लोग कौन होंगे ये आप डिसीजन ले लें। सो यू सी सच अ डिफिकल्ट डिसीजन यस दैट यू हैव टू। तो एक तो डिसीजन ये है कि आप वो 4 जिनको आप सबसे ख़राब समझते हैं, जिनकी कारकर्दगी सबसे ख़राब है, आप उनको करें। लेकिन उससे भी डिफिकल्ट एक डिसीजन ये, यू ट्राई टू रिटेन ऑल ऑफ दोज पीपल, राइट। यस नाउ हाउ डू यू डू दैट? तो मैंने अपने जो हमारे सीईओ थे, मैंने उनसे पूछा कि इज़ देयर अ वे दैट आई कैन फाइट एंड रिटेन ऑल दीज 25 पीपल? उन्होंने कहा कि यार वी कैन ट्राई, बट दैट्स अ ग्लोबल डिसीजन फ्रॉम लंडन, द हेड ऑफिस, दैट एवरी कंट्री हैज़ टू रिड्यूस हेड काउंट बाय सच एंड सच परसेंटेज। जी तो आपके 25 से भी 4 ही तो निकाल रहे हैं, वो तो निकालना ही है, कॉस्ट तो कम करनी है। मैंने कहा अच्छा, सो इवन इफ कि अगर हमारे पास काम जो है वो 22 लोगों का है फिर भी निकालें हम, या 24 लोगों का है, कहने हाउ कैन यू प्रूव इट? मैंने कहा आई कैन प्रूव इट। कहने अच्छा ठीक है। तो पता ही चला कि एक लंदन ऑफिस से एक सिस्टम्स के स्पेशलिस्ट साहब आएंगे गोरे, जी और वो आके मेरा ऑडिट करेंगे क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया। सो सी इट वाज अ रिस्क। आपको चैलेंजेस लेने का हाँ शौक तो है। लेने पड़ते हैं ना, चैलेंज ले लिया ना कि 25 के 25 आदमियों को हम रखेंगे, जी राइट। अब अगर मैं उसको नहीं साबित कर पाऊंगा तो वो यही कहेंगे कि डिपार्टमेंट का हेड जो है, ये ऑपरेशंस का हेड, इसकी तो कैपेबिलिटी नहीं है अपनी। सो खैर, और जिस बंदे का वो नाम ले रहे थे, ही वॉज वेरी केपेबल, सो ही केम। और उसने तो मुझे ये तक बता दिया, सिस्टम में डेटा एंटर होता है, 1 मिनट में 1 एंट्री होती है, 2 मिनट में इतनी एंट्रियाँ होती हैं, तो टोटल तुम्हारी इतनी एंट्रियाँ हैं, तो इतनी एंट्री एक। ही केम अप टू दैट लेवल, राइट। जी। सो ही न्यू द टास्क्स। तो उसने कहा कि इस हिसाब से आपके लोग बनते हैं 21। मैंने कहा ओके, एंड आई हैड ऑल्सो मेड माई प्रिपरेशंस, क्योंकि मैं भी उस जंग की तैयारी तो की हुई थी। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि छुट्टी पे, अच्छा पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी ख़राबी है कि अक्सर लोग छुट्टियों पे नहीं जाते, लेकिन गोरा ज़रूर जाता है। गोरा इज़ स्मार्ट। तो मैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे बेचारे लोग ओवर टाइम लेने के चक्कर में नहीं छुट्टी पे जाते थे, मैं कहता भी था। तो खैर, बट लीगली एंड एथिकली तो दे आर अलाउड ना। जी सो आई टोल्ड दैट पर्सन, गोरे साहब को, मैंने कहा कि 1% तो साल में छुट्टी में होगा ना मुसलसल? कहता यस। तो मैंने कहा एक तो ऐसे कम कर दो, तो 25 में से बल्कि 2 कम करो, क्योंकि 2 जाएंगे। तो वो मुझे यूँ करके देखता, कहता हाँ ठीक है ओके। मैंने कहा अब आ जाओ 2 और। एंड देन आई वेंट ऑन टू द डिटेल्स कि खाना खाने में कितना टाइम लगता है, नमाज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, बाथरूम कितनी दफ़ा आप जाते हो दिन में। एंड ही वॉज लाइक कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं बताओ, कैलकुलेट करो ना, तुम उस लेवल पे जा रहे हो। तो मैंने कहा कैलकुलेट करो और टाइम निकालते जाओ, टाइम इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड आवर्स। जब वो सारी कैलकुलेशन होगी ना, खाना पीना नमाज बाथरूम सब कुछ हो गया ना, तो आखिर में कहता यू नीड 1 मोर पर्सन। मैंने कहा प्लीज़ गो एंड टेल माई सीईओ। सो दैट इज़ हाउ वी वर एबल टू सेव द पीपल। आपको तैयारी करनी पड़ती है। देखें, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, रिस्क आप लें लेकिन तैयारी करके लें, सही बात है। और वो तैयारी आप अकेले नहीं कर सकते। नहीं डू यू थिंक आई वॉज सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस मैन जिसने ये सारा काम कर लिया था? नो, आई सेट डाउन विद माई टीम कि यार, जो मेरे सीनियर थे 2 उनमें, यार ये मसला हो गया, हेड ऑफिस कह रहा है हेड काउंट रिडक्शन करनी है, हमने नहीं निकालना, ये किधर जाएंगे बेचारे बच्चे हमारे। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर, मुझे टूल्स दो क्या क्या करें। एंड देन वी यूज टू हैव ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड वी केम अप विद द आइडिया कि हम खाना पीना और बाथरूम और नमाज और एक एक चीज़ करके डालेंगे ना, तो फिर उसके बाद ये बेचारा आखिर में। तो मुझे लोग कहते थे कि यार तुमने उसको कैसे काबू किया, हमें भी बता दो, ताकि हमारे यहाँ तो ये 4 आदमी कम करके चला गया। मैं कहा हम क्यों माने, ऐसे क्यों माने। सो चैलेंजेस आते हैं, इस तरह के चैलेंजेस जैसे सीमेंस में आया था, ये आया वहाँ पे। मैं आपको एक बात बोलूँ, आई एम करंटली फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, एक्सट्रैक्टिंग माई सेल्फ ग्रेजुअली। मुझे जो एक चीज़ रैम्पेंटली नज़र आती है ना, एंड आई बिन वर्किंग माई सेल्फ फॉर 13-14 ईयर्स, एंड ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है या पीपल आई टॉक टू,
पीपल डोंट ट्रस्ट आपकी टीम में, या जो लीडर्स होते हैं या टीम लीड या HODs होते हैं, उनका टीम में कॉन्फिडेंस नहीं होता. दे आर वेरी वेरी ईगर टू थ्रो देम अंडर द बस. और ये फ्रेज़ बहुत कॉमनली अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट की भी नहीं, मैं आपको कोई भी सेक्टर बता दूं, सारे सेक्टर्स ही हैं. नौकरी 9 से 5 होती है. वो एक लाइक यू जस्ट सेड, बिल्कुल सही कहा आपने, एरोगेंस. दूसरा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं होता. एंड वो टीम लीड या HOD अपने आप को बचाने के चक्कर में दे आर वेरी ईगर टू थ्रो द टीम अंडर द बस. तो ये सर्कल ऑफ ट्रस्ट डेवलप ही नहीं होता ना. उसकी देखिए, उसकी एक वन ऑफ द मेन रीज़न इज़, आई हैव told you about my father. जी. My grandfather was not that educated person. वो इंडिया में एक पुलिस में SHO लेवल के एक ऑफिसर थे. जी. और मैंने उनको देखा भी नहीं, अपने ग्रैंडफादर को. बट मैं अपने फादर से जब पूछता था उनके बारे में, तो मैं उनसे कहता था कि आप उनको बता सकेंगे अगर दादा आ गए वापस ज़िंदा होके जादू से, सो हाउ वुड यू टेल देम दैट यू वर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सैटेलाइट और रॉकेट्स. वो तो समझ ही नहीं पाएंगे एक लफ्ज़ भी. तो फिर वो मुझे कहते थे, देखो नॉलेज या एजुकेशन जो है ना, उसको आप सिर्फ फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में ना रखो. Exactly. तो वो कहते थे कि तुम्हारे दादा ने अपने बच्चों को एक बात बताई थी कि बेटा कभी किसी पोजीशन पे मत चले जाना जिसके बारे में तुम्हें पता हो कि तुम उसके खुद कैपेबल नहीं हो. बिकॉज इफ़ यू विल सिट ऑन दैट चेयर एंड यू नो दैट यू आर नॉट कैपेबल, यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ एंड यू विल डिस्ट्रॉय अदर्स. ये बहुत बड़ी बात है. And that is what happens in the companies. If I have become a CEO and if I know that I was not competent enough, मैंने कोई एप्पल पॉलिशिंग करके और मैंने कोई सेठ साहब की चमचागिरी करके एक पोजीशन बना ली है, तो फिर मुझे हर वक्त खतरा रहेगा कि कोई भी आ जाएगा मेरी जगह और मेरी जगह ले लेगा. और जब मुझे ये खतरा रहेगा तो आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट. और जो मेरे पास आएगा अच्छा, मैं उसको पीछे करने की कोशिश करूँगा. दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी. आई टोल्ड यू इन द सीमेंस, बिकॉज माई फर्स्ट बॉस वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड दैट इज़ वाई. तो आप वो जगह ही ना लेना, ऐसी जगह ना लें जिसको आप कर नहीं सकते. You know, आज आप CEO हैं and you're self-employed. You're CEO of your life. हाँ. You're CEO of everything around you. हाँ. And then एक 9 to 5 भी है. How do you see that shift? वो एक पूरा शिफ्ट या अपना काम मैंने जब से शुरू किया, आई एम एंजॉइंग. बिकॉज नाउ आई हैव अ पार्टनर, बट विद माई पार्टनर वी कैन टेक डिसीजंस वेरी क्विकली. जी. ठीक है. तो एक तो ये आसानी हुई है. जी. दूसरे नाउ अब ये हमारे हाथ में है कि हम कितना गार्बेज जी डाउन द सिस्टम, डाउन द लाइन दे रहे हैं या नहीं दे रहे. अगर हम नहीं दे रहे तो हमारा बहुत सा टाइम बचेगा. आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली नाउ, माई जो मेरी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है जी, इसमें मैं 30 to 40% टाइम देता हूँ. ओके. 30 to 40% टाइम जो है मैं अपना वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तरफ ही कर रहा हूँ. ओके. बिकॉज टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन. सो आई हैव बीन टीचिंग इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. और 20% टाइम मेरा जो है वो फारिग होता है. जी. सो 80% उस पर मैं काम कर रहा हूँ. यू नो, आपकी और मेरी जब शुरू में बात हुई थी, जब नादिया ने कनेक्ट करवाया था एंड वी वर सिटिंग, तो वन थिंग यू डिड से वाज दैट इफ़ योर पर्सनल लाइफ इज़ नॉट बैलेंस्ड या वो हार्मनी में नहीं है, तो फिर और कुछ भी हार्मनी में नहीं चलता. एंड दैट स्टेटमेंट स्टक विथ मी. एंड नाउ आई वांट टू नो, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, वाई डू यू फील दैट? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, ये वो सिर्फ एक कहने को 9 to 5 है, वो 9 to 9 भी बैठे रहेंगे और वो बहुत ग्लोरीफाइड चीज़ होती है कि वी आर addicted to work या we are workaholics या we are just climbing the ladder and we are so busy doing that, right? ये बहुत कम लोग, एटलीस्ट बहुत कम, अगर मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, बहुत कम मर्द हजरात, एटलीस्ट फ्रॉम माई जनरेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अगर मैं उनके लिए एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, आई डोंट नो कि आप उसको, दे आर फूल्स. ठीक है. मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर लोगों को कहता था कि ये जो आप 11-11 बजे रात को, 10-10 बजे रात को बैठ के काम करते हो, जी, इफ़ यू डाई, आपका जो बॉस है या CEO है या रीजनल डायरेक्टर है, फूल भेज देगा बस आपकी खबर पे एक दफ़ा, एंड दैट्स इट. आफ्टर दैट उसका क्या आपसे ताल्लुक़ होगा? इट इज़ योर फैमिली दैट सफ़र्स. तो हाउ यू कैन पुट योर फैमिली बिहाइंड योर जॉब? करते हैं लोग,
करें, मैंने तो कभी नहीं किया। एक गलती मैंने करी और मुझे वो आज तक गलती मुझे बुरी लगती है अपनी, और वो मैंने गलती क्या करी। आई हैव 2 daughters, और मेरी छोटी वाली जो बेटी थी उसने शरारत में, वो जो लूडो खेलते हैं जी, तो लूडो की गोटें वो इतनी शरारती थी, उसने अपनी नाक में डाल दी, राइट, और रेड कलर की इत्तेफाक से वो थी। सो माई वाइफ एंड शी इज़ डॉक्टर, जब वो उसने देखा तो उसने कहा गोटे फंसी हुई हैं अंदर यहाँ पर नॉस्ट्रल्स में, जी, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि वो उसको निकाल नहीं पा रही थी। जी, और उसने ये कहा कि ख़तरा ये है कि अगर ये पीछे चली गई ना तो ये हलक में फंस जाएगी, तो दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। जी, तो वो भागी भागी आगा खान हॉस्पिटल पहुंची, एंड शी कॉल्ड मी अप कि ये कर दिया इसने, छोटी ने, और आप पहुंचो। एंड आई वॉज इन अ मीटिंग, मैनेजमेंट मीटिंग, और मैं उस मीटिंग को छोड़ के नहीं गया। एंड बाय द टाइम मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ आगा खान में, अल्लाह का शुक्र है वो आगा खान वालों ने अपना काम सही किया, एंड दे टुक आउट दोज थिंग्स, एंड शी वॉज फाइन, एंड शी वॉज सिटिंग इन दी एमरजेंसी। उसको, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट देन माई पार्टनर ऑल्सो सेड लॉट ऑफ थिंग्स टू मी कि भाई तुम भी बाप हो, ये तुमने क्या किया, और सही कहा उसने। और मुझे आज भी वो बुरा लगता है कि दैट वॉज अ मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन विद माई फैमिली, एंड आई प्रेफर्ड माई जॉब और मीटिंग। और मैंने ये सोचा कि यार ये तो खुद डॉक्टर भी है, पहुंच भी गई है तो कर लेगी, बट आई शुड हैव बीन देयर। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ियाँ लोग करते हैं, जो मैंने एक करी है, जो मैंने आपको बता दी, मगर मुझे आज भी रिग्रेट है इस चीज़ का। आई शुड हैव बीन देयर। सो मैं हर एक को ये कहता हूँ, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। You can have a second job, you can have a third job, but you will not have the same family. Family should be the number one priority. When you were getting married या when you were having your daughters, ये realization आपको तब से ही थी या ये over time जाके gradually कुछ थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा ना, जैसे ये गलती मैंने कर दी ना एक, तो पहले भी मतलब थोड़ी सी छोटी मोटी गलतियां मैंने करी। वो गलतियां क्या करी कि आई वॉज नॉट, मैंने इतना टाइम नहीं दिया जो यूजुअली मर्द लोग नहीं देते ना, हैं, और ख़वातीन देती हैं बच्चियों को। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड मोर एंड मोर कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। एंड देन आई मेड श्योर कि मैं अपनी बेटियां जो हैं इनका मैं दोस्त बनूंगा, नॉट जस्ट फादर। अदरवाइज़ मैं इनकी तरबियत भी नहीं कर सकूंगा। और आज हम लोग ने हमेशा से एक मेक श्योर किया कि वी हैव अ फैमिली गैदरिंग हमारी होती है रात के खाने पर, और हम बच्चों से भी कहते हैं तुम अपनी बातें शेयर करो, अब तो बड़े हो गई दोनों, और अपनी बातें भी शेयर करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अ बॉन्ड, एंड दैट इज़ हाउ यू लिव हैप्पीली। तो जब आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं ना, फिर ऑफिस में भी जाके खूब अच्छी तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब्ड है तो आप ऑफिस में भी डिस्टर्ब ही रहते हैं। आपकी जनरेशन के बहुत कम मर्द हजरात हैं जिनका ऐसा परसेप्शन है। I'll be very honest, very few. Generally एक वही चीज़ होती है कि financially provide कर दिया, our job is done. No one says it in such simple words, लेकिन जो execution point पे आता है या जिस तरह एक family unit operate करता है वो यही करता है, particularly जहाँ daughters हैं तो then the mother is the dominating factor emotionally भी हर तरह से, and the father just provides financially. If I talk about people from your generation specifically, I also have a father. And I will tell you this today, this is not the kind of equation I have with him. Yes, now, after so many decades, things are different. Magar aisa nahi tha when we were growing up, so listening to you is like a breath of fresh air. And I didn't plan on making this admission, magar गलती करी उन सब लोगों ने। बेटा हो या बेटी हो, जी, बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप फ्रेंडली होना चाहिए। right. Again, that is also a team. Yes. And you have to be a team player. जी, There you also have to be a team player. you're right? absolutely right. तो अब हम लोगों ने करा हुआ ये है कि आजकल के बच्चे, आपको पता है कि उनको बर्गर्स का बहुत शौक है, जी, बाहर के खाने खाने का। तो माई वाइफ बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस डाइट थिंग, उनका इनको कैसे कम कराएं। मैंने कहा भाई अब तो खुद कमा भी नहीं है, तो मतलब अब कैसे हम रोकेंगे ज़बरदस्ती। तो हमने कहा कि अच्छा हम जो है ना पैडल खेलना शुरू कर दिया हमने। So we all four play paddle. All four of you? We all four. ज़बरदस्त, my wife and daughters. ज़बरदस्त। हर हफ्ते एक दिन हम पैडल खेलते। उसमें भी हमारी एक
गेट टुगेदर हो जाती है ना। Yes, उसके बाद फिर yes. हम कमेंट करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ देखो सबसे ज़्यादा उम्र वाला होकर भी तुम तीनों से अच्छा खेल रहे हो, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी रेगुलर क्रिकेट प्लेयर ड्यूरिंग माई एनईडी डेज। जी. तो फिर हम एक दूसरे को सुनाते भी हैं, टॉन्ट भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, बट दैट हाउ योर बॉन्ड इज Yes. स्ट्रॉन्गर ना, दैट इज हाउ यू डू दैट। आप ये सीईओ मोड जो पूरी ज़िंदगी एक ऑफिस में चलता है, नाउ यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन कंपनी, ये घर में आके ऑफ कैसे होता है फिर? क्योंकि एक वो भी चीज़ होती है ना, लाइक इसलिए कि मैं सीईओ की कोई वैल्यू ही नहीं देता ना। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आई हैव सीन माई फादर, ही वॉज चेयरमैन ऑफ सुपारको, एंड व्हेन ही वॉज एट होम ही वॉज जस्ट अ फादर। सो सीईओ किसी काम का नहीं है घर के अंदर, उसके सीईओ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही हैज़ टू बी अ गुड फादर और शी हैज़ टू बी अ गुड मदर, दैट्स इट। आपके सीईओ होने से कुछ नहीं होता ना, वो सीईओ ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, आप घर पे आ गए, अब आप सीईओ नहीं हैं। और मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि आई विल नॉट डू ऑफिस वर्क आफ्टर आई हैव कम बैक टू होम, अनलेस एंड अनटिल देयर आर एमरजेंसीज होती हैं, ऐसा नहीं है, बट अदर देन दैट ये टाइम आपकी फैमिली का टाइम। सॉरी, यू नो इफ आई वर टू आस्क यू कि मैं कोई बड़ी अजीब अजीब बातें तो नहीं कर रहा ना। नहीं, आप बहुत सही बातें कर कॉमन रहे सेंस हैं। की बातें कर रहा हूँ ना। नहीं। हाँ, ये और बात है कि मेजॉरिटी लोग ये नहीं करते, एग्जैक्टली, एंड देन दे हैव द रिग्रेट्स ना, जी, कि मेरे बच्चों से मेरे वो ताल्लुकात नहीं हैं, दे डोंट टॉक टू मी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, राइट। यस, तो इससे पहले कि आप मरने के नारे आ जाए, अपने आप को सही कर, जी, सही बात है। सही कर लें। What would you want to say to boys and girls who were just listening? क्योंकि the thing is, आप अजीबो गरीब तो बहुत दूर की बात है, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत खरी बातें कर रहे नहीं, हैं। मैं ये कहूँगा कि देखें, आजकल बहुत जोर आ रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। जब मैंने नौकरी शुरू करी थी तो कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लोगों की जॉब ले जाएंगे, एआई आएगा जॉब ले जाएगा। जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दोज थिंग्स। टेक्नोलॉजी इंसान सीख लेता है और सीखेगा, एआई भी सीखेंगे लोग। लिव बाय द वैल्यूज़। मैं मुझसे पहले वाली जनरेशन के लिए भी ये बात दुरुस्त है, जी, ये पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक ये बात सही रहेगी। जी, लिव बाय द वैल्यूज़, एंड व्हेन आई से वैल्यूज़, वही जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिलेशनशिप में सिंसियरिटी। शायद आपसे उस दिन भी जब मैं मिला था तो मैंने ये कहा था कि मर्दों को मैं हमेशा ये पैगाम देता हूँ, और जहाँ भी किसी को अगर मैंने कोई बात करी है, इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट करा है या करूँगा, मैं एक बात कहूँगा, इस माशरे की सबसे ज़्यादा बुराई मर्द लेकर आते हैं। और मर्दों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने शादी कर ली है ना, तो फिर इंसान ही बने रहे। सही कह रहे हैं। सो डोंट ट्राई टू बी, कि अगर आपने बीवी के साथ अपनी सिंसियर नहीं है जी, तो फिर आपका बेड़ा गर्क यहाँ तो होगा ही होगा, अल्लाह के यहाँ भी होगा। सो नई जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि लिव बाय द वैल्यूज़, जी, लिव बाय द वैल्यूज़। आप सच्चे रहें, आप ईमानदारी से काम करें, अपने रिलेशंस में सिंसियर रहें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस से सबसे पहले सिंसियर रहें, नहीं है तो अपने पेरेंट्स के साथ रहें। व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, उस वक्त तो मेरी शादी नहीं हुई थी ना, नहीं, सो आई हैड गॉट एडमिशन्स फ्रॉम बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, मुझे एडमिशन यूएसए में मिल चुका था। आई हैड वेरी गुड स्कोर इन टोफल एंड जीआरई, एंड आई वाज अबाउट टू गो, और जाते जाते अचानक, एंड आई हैव गॉट sisters, no brother, so I was the only son and the youngest in the family, so I was living with my parents. अचानक लास्ट मोमेंट में मुझे हुआ कि अगर मैं चला गया तो इनके साथ तो, मेरे अम्मी अब्बा के साथ तो कोई भी नहीं है, तो फिर मैं अगर गया तो फिर आसानी से वापस नहीं आऊँगा। जी, I decided I will not leave. That was the value. The only thing which made me stay in this country was not the love of this country as my father had, love of my parents. उनकी वजह से मैं रुक गया, और फिर जब रुक गया तो कहीं नौकरी तो करनी थी, जी, और कोशिश करनी थी अच्छी जगह मिल जाए। तो देन आई स्टार्टेड माई करियर विद सीमेंस, वहाँ नौकरी मिल गई, एंड देन आई मूव्ड ऑन। सो आई हैव ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट माई फर्स्ट 18 to 20 years विद मर्स्क एंड सीमेंस, बट मैं कभी कराची से बाहर नहीं गया परमानेंटली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और इस 18 साल में मुझे 3-4 दफ़ा कम से कम अपॉर्चुनिटी मिली फॉर ट्रांसफ़र इन लंडन, ट्रांसफ़र इन जर्मनी, ट्रांसफ़र इन डेनमार्क, बट आई रिफ्यूज्ड ऑल सच ऑप्शंस बिकॉज नहीं,
आई वॉन्टेड टू लिव विद माई पेरेंट्स। अब जो मुझे वो मिला है ना, जी तो मेरे दोस्त जो सारे चले गए, अच्छा सब अमेरिका में, मेजॉरिटी ऑफ द एनिडियंस आर इन अमेरिका उस ज़माने के, फिर बहुत सारे तो अफसोस ये करते हैं कि हमें कंधा देने का भी टाइम नहीं मिला अपने वालदेन को। सो यू आर लकी एट लीस्ट। सो इस रिग्रेट के साथ आप अगर जीना है आपको, जी तो वैसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यंगर जनरेशन को भी यही है, लिव बाय द वैल्यूज़। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, अब जाना भी मजबूरी हो गई है, जो हालात और ख़राब हो गए, बट वेर एवर यू आर, लिव बाय वैल्यूज़। सच्चे रहें, ईमानदारी से काम करें, धोखा नहीं दें किसी को। You know, I wanted to ask you towards the end कि what's the legacy you would want to leave behind, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे उस सवाल का भी जवाब मिल गया है। मैं लेगेसी मैं क्या छोड़ूंगा, मैं कोई अब्दुल सत्तार ईदी तो हूँ नहीं। ठीक है, नहीं, but there's a मैं lot कोई मैं that बहुत, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई टेल यू ऑनेस्टली। सो लेगेसी मैं यही कहूँगा कि यू सी, आपके पास ज़िंदगी में जिन दो चीज़ों का कंट्रोल है, जी मैंने ये सीखा, और वो है आपके एफर्ट जी और आपका एटीट्यूड। नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। इसके अलावा कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपके कंट्रोल में नहीं। आपके कंट्रोल में आपका एफर्ट है और आपका एटीट्यूड है। बस इसको सही रखें, एफर्ट करते रहें, बिकॉज आई बिलीव कि फेलियर टू सक्सेस जो है ना, वो एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा, मगर अगर एक्सक्यूजेस करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल तो कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, कंटिन्यू टू मेक एफर्ट्स। क्या मुझे फेलियर नहीं हुए? मुझे भी बहुत फेलियर हुए, ऐसी बात तो नहीं है ना। नाकामी नहीं होती है, गलतियाँ नहीं होती हैं, होती हैं, बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड मूव ऑन, जी एंड मूव ऑन। मेहनत करते हैं। तो बस यही है, यंगर जनरेशन को मैं यही कहूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा, मैंने कुरान पर बहुत इन्वेस्टिगेशन करी है, बिकॉज आई केम टू नो कि इसको तो कोई तवज्जो नहीं देता, और सारे के सारे लोग जो है वो हमारे मौलवी भाइयों की बातें सुनते हैं। सो कुरान, व्हेन आई रेड कुरान, देयर आर 114 चैप्टर्स इन कुरान, जी एंड द 63rd चैप्टर ऑफ कुरान, अगर आप उसकी आखिरी 3 वर्सेस पढ़ें, जी तो उसमें गॉड सेइंग टू ह्यूमंस इज कि आप अपने बच्चों और पैसे के पीछे ना पड़े रहें, आप लोगों पर खर्च करें बिफोर इसके कि आपका टाइम आ जाए। सो जस्ट सी दैट गॉड इन कुरान इज नॉट सेइंग कि तुम्हारे मरने के वक्त मैं तुमसे ये पूछूंगा तुमने फलानी इबादत करी, फलानी नहीं। गॉड इज सेइंग कि इससे पहले कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाए, लोगों पे खर्च कर दो। और खर्च करने की डेफिनेशन पैसा नहीं है खाली, नो। नहीं इफ़ यू हैव गॉट सम स्किल्स, एनी स्किल, एनी नॉलेज, एनीथिंग, दूसरों को दें, शेयर करें दूसरों से। सो नई जनरेशन हो, पुरानी जनरेशन हो, लेगेसी मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है तो मैं लोगों से शेयर करूँ, एंड दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स एवरी ह्यूमन टू डू। वो आप भी यही कर रही हैं। आप पॉडकास्ट के ज़रिए क्या कर रही हैं? आपके पॉडकास्ट में जितने लोग आ रहे हैं वो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। जो लोग उनको सुनेंगे, हो सकता है उसमें से कोई 1-2 अच्छी बातें ले लें। सो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, एंड दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट पीपल। तो ये करें आप। this was wonderful. Thank you चलें, so अगर much. आपको पसंद आया। एक बहुत। लास्ट बात मुझे नहीं पता, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मेरा एक बड़ा फेवरेट गाना है, जी जो मैंने जहाँ भी मैं जाता हूँ, किसी भी ट्रेनिंग में गया हूँ, कहाँ पूछा जाता है तो मैं बताता हूँ। जी माइकल जैक्सन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। उसके बाद से तो मैंने इंग्लिश गाने ही सुनने छोड़ दिए। माइकल जैक्सन का एक बड़ा मशहूर गाना है, मैन इन द मिरर, और वो गाना मेरा बड़ा पसंदीदा है, जी इसलिए कि वो आपके अपने ऊपर पॉइंट कर रहा है गाना कि आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हिज वेज। सो अगर कुछ लेगेसी छोड़नी है तो सबसे पहले हर एक को अपने आप को चेंज करना होगा बेहतरी के लिए। एंड आई हैव लॉट ऑफ वीकनेसेस एज वेल, तो मुझे उन पर भी काम करना चाहिए, बट आई हैव टू स्टार्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर। ये मेरा फेवरेट गाना है। That's an absolutely beautiful thought, and it's a wonderful way to look at things. Thank you so much. यू आर वेलकम। Thank you so much, guys, for whoever stuck around this long. And honestly, I didn't know how this conversation would flow, but it was pure heart, it was pure soul, and it was absolutely beautiful. Thank you so much.